Algebraic methods of solving a pair of linear equations. Pair means two equations. Although we have three methods to solve the pair of linear equations, one is method of substitutions, method of eliminations, and cross multiplications method. Exercise 3.3, 3.4 and 3.5. But in examinations, this is not important that which method you are using. It is important that how you solve the questions correctly and within the time period. So in this case, cross multiplication method is less time consuming as comparison to other two methods, but in examination normally we get to solve the equations. Ultimately in 10th class the main purpose is to get the how to solve the pair of linear equations in two variables. In first two exercise they have given the graphical methods, and in the next three exercises they have given the algebraic methods. Algebraic methods mean first method of substitutions. नाम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलिमिनेशंस मीन एलिमिनेट करेंगे, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन क्रॉस मल्टीप्लाई. Condition for unique solutions, I am repeating it, consistent if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. What is a1 and a2? Because here system of equations let us suppose a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the system of equations. From there I have taken a1, a2 and this so on. So in these videos we will solve the questions. Before solving you should check it whether it is a unique solution, because these method will be applied only when the conditions for the unique solutions only. If the solutions are not uniques, you should not apply any of the methods. It means all the methods are totally dependent on your unique solutions methods, whether it is algebraic or any type of equations are there. Now first questions. Let us take one question, 5x plus 3y minus 35 equal to 0 and 2x plus 4y minus 28 is equal to 0. Let us solve these two questions. First, reduce in standard form if it is possible. The standard form will be x plus 2y minus 14 equal to 0. मीन 2 कॉमन ले लिया, फ्रॉम सेकंड मैंने ये चेंज किया, और फर्स्ट में ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, तो मैंने इसको फर्स्ट ही कह दिया. First let me take elimination method. Eliminations mean you have to eliminate the variable x और y. सपोज करिए कि हम एलिमिनेट कर देते हैं x को,
एक्स को एलिमिनेट तभी करेंगे जब हम थर्ड इक्वेशंस को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इट विल बिकम्स 5x प्लस 10y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। और फ्रॉम फर्स्ट इसको ऐसे ही रख लें। अब दोनों के वेरिएबल सेट हैं, तो फोर्थ माइनस फर्स्ट कर दें, तो माइनस करने से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस 35 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 35, ये 5 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। आप कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए मेन कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x या y इक्वल होने चाहिए। या x था यहाँ 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। y के करने होते इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से, तो y के इक्वल आ जाते। नाउ फ्रॉम थर्ड x प्लस y की वैल्यू 5 पुट कर दें, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो दिस इंप्लाइज x इज प्लस 10, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस x 4 एंड y 10 5। तो दिस टाइप ऑफ वर्किंग्स में ये दोनों मेथड कवर्ड हो जाते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस भी और मेथड ऑफ एलिमिनेशंस भी। मतलब स्टूडेंट्स को पहले एलिमिनेट कर लेना चाहिए, बाद में सब्स्टिट्यूट। बुक्स में क्या दिया होता है कि पहले ही सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, फिर पहले एलिमिनेशन से। उससे कोई फ़र्क नहीं है, हमें वो मेथड अप्लाई करने चाहिए जो हमें हायर क्लासेस में भी यूज़फुल हों। अगर जो एग्जामिनेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो वो भी कवर्ड हो गया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन आ जाए तो वो भी कवर्ड हो गया। ऑल्दो एग्ज़ाम में कभी भी नाम से नहीं आता। आप कोई भी एक प्रोसीजर लगा के मेथड की प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाऊं। ऑल्दो आजकल ये कहते हैं सिलेबस में नहीं है, रिलेटेड सिलेबस में है, बट फिर भी करना चाहिए, बिकॉज हायर क्लासेस में अगर जो बच्चा ये मेथड अप्लाई करता है तो उसका बहुत कम टाइम लगता है। शिफ्ट all the terms on one side, that is, ये पहला स्टेप है। 5x प्लस 3y माइनस 35 0, x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड, अगर जो नहीं दी हुई है, देन x माइनस y एंड 1। पहला वेरिएबल x सेलेक्ट करना है, y मिडल में है, ये x है, ये y है, और ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ x, ये कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म। जो भी टर्म मिडल्स में है उसके साथ माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना।
अंडर एक्स, जब एक्स के नीचे बोलते हैं अंडर एक्स, निगलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मैं लिख रहा हूं निगलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वाई में निगलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ वाई। एग्जाम में ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नोट्स के लिए है। कांस्टेंट टर्म में निगलेक्ट कांस्टेंट टर्म्स। निगलेक्ट द कांस्टेंट टर्म। बहुत आसान मेथड्स होते हैं, ये सिर्फ आपको एक बार थ्योरी लर्न करनी होती है। यहाँ इंप्लाइज डालिए, एक्स लिखिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, -42, ये माइनस साइन आएगा और -70, मतलब ऊपर से नीचे और दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। जब आप नीचे से ऊपर इस टर्म को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ करेंगे, जो मैंने रेड पेन से मार्क करेंगे, इज इक्वल टू -y -70 -35 10 -3। This x will be 28, y will be +35, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल्ड हो जाएगा। इट मीन x इज इक्वल टू 28/7, दैट इज 4। फर्स्ट और जब लास्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 35/7, दैट इज इक्वल टू 5। तो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बुक्स में चाहे कुछ भी दिया, लेकिन मैं बच्चे से ये दो मेथड ही उम्मीद लगाता हूं। इसलिए मैंने तीनों एक्सरसाइज के ऊपर एक कंबाइंड लेक्चर देने की प्लानिंग की है। इसे लिख दिया एक्सरसाइज 3.3, 3.4 एंड 3.5। एंड इट्स माई सजेशन दैट द स्टूडेंट शुड यूज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तभी मैं आपको शॉर्टकट्स भी करा पाऊंगा। स्टेप्स देख लीजिए, मैंने लिख तो पूरे नोट्स में दिए। शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू वन साइड इफ इट इज नॉट, ये पहला स्टेप्स है। दूसरा x -y और 1 लिख लीजिए, माइनस साइन हर उस टर्म के साथ लगेगा जो मिडिल में है। x के नीचे निगलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ x, y में निगलेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म में निगलेक्ट कांस्टेंट टर्म्स। फिर निगलेक्ट करने के बाद फिर आपने जो रेड पेन से हैं वो माइनस साइन के साथ आएंगे। कैलकुलेशंस करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को करेंगे 4 आएगा, सेकंड और उसको करेंगे 5 आएगा। तो मैंने दो मेथडों से मेथड्स आपको दे दिए। चॉइस आपकी है, दोनों आने चाहिए। पहले में मैंने मेथड इस ढंग से प्लान किया कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन दोनों कवर हो जाएं। सबसे पहला स्टेप आप यूनिक सॉल्यूशन चेक कर लेना, बिकॉज दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सॉल्यूशन इज यूनिक। बट जब सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा तब आप ये मेथडों को अप्लाई नहीं करेंगे। और एग्जामिनेशंस में कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी डेवलप करने के लिए इट्स माय सजेशंस कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस की प्रैक्टिस करें। हायर क्लासेस तक आपको ये मेथड्स कैरी करने हैं। नाउ लेट अस टेक योर एक्सरसाइज 3.3।
सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो जान के लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड, बट ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये मेरी हैबिट है कि मैं सारी टर्म्स एक ही साइड पे शिफ्ट करता हूं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। अगर जो मैं सीधा फर्स्ट प्लस सेकंड करूं तो क्या होगा, y से y कैंसिल, एलिमिनेट हो जाएगा। 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 9 आ गई। एक आंसर तो ये आ गया। एंड फ्रॉम फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, x की वैल्यू 9 पुट कर दो प्लस y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 5, 0। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5। ये आपके आंसर आ गए। मैंने इसमें एलिमिनेशंस भी लगा दिया, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो x कैंसल्ड होता, ऐड किया तो आपका y कैंसल्ड हुआ। सेकंड क्वेश्चंस s माइनस टी, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इज इक्वल टू 3 s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसको फर्स्ट कह दें, इसको थोड़ा एलसीएम ले लें, 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 3t माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से s माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट कह लेते हैं, इसको सेकंड। आपकी मर्जी है, अगर जो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस भी लगाना चाहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3s माइनस 3t माइनस 9, 0, 2s प्लस 3t, इसको थर्ड को, इसको फोर्थ को। अब यहां थर्ड प्लस 4 करेंगे तो 5s माइनस 45 इक्वल टू 0। s विल बी इक्वल टू 9। फ्रॉम फर्स्ट ले लो, अगर जो आप s की वैल्यू 9 पुट करते हैं तो t विल बी इक्वल टू 6। ये आपके आंसर आ गए। तो मैंने आपको कहा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही सब्स्टिट्यूशंस करें। एलिमिनेशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जब आप किसी बुक से सॉल्यूशन देखते हैं, आज की डेट में बच्चों को यही एक कन्फ्यूजन्स हैं कि वो मेथड्स के में पर्टिकुलरली अड़ के काम करता है। मेथड्स की तरफ मत जाइए, आप वो देखिए कि कौन सा आपको कंफर्टेबल है, कौन सा आपको सॉल्व करने में इजी रहता है। अगर आप थर्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप यहां से a1 अपॉन a2 निकालेंगे, 3 बाय 9 1 बाय 3 है। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो ये भी 1 बाय 3 है, और c1 अपॉन c2 निकालेंगे सो दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 दिस इंप्लाइज the system has infinite many solutions। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसलिए आप नहीं सॉल्व करेंगे।
if I take fourth part, 0.2x plus 0.3y minus 13 is equal to 0, सॉरी माइनस 1.3 कर लो। नेक्स्ट में 0.4x प्लस 0.5y माइनस 2.3 इक्वल टू 0। देखिए, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो माय सजेशन इज कि अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, वैसे तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकता हूं, बट मतलब इसको फर्स्ट कह लूं, इसको सेकंड कह लूं, आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर जब मैं इसमें फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 0.4x प्लस 0.6y माइनस 2.6 इज इक्वल टू 0, और यहां पे 0.4x अगर आप यहां से थर्ड माइनस 4 करें तो 0.1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू 3 आ गई, और फ्रॉम फर्स्ट 0.2x प्लस 0.9 क्योंकि 3 की पुट कर देंगे माइनस 1.3 इज इक्वल टू 0। 0.2x माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो आप किसी भी क्वेश्चंस को कैसे भी कर सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं सारे सम्स एक ही मेथड से आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे √3 2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। Here, if the pair of linear equations has no constant terms, then solution is x is equal to 0 and y is equal to 0। ये बच्चों को नोट करना चाहिए। अब सॉल्व भी करके देखेंगे तो यही आएगा, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, और बच्चे को ये सॉल्व करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज तभी आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों को क्विकली हैंडल कर पाएंगे। तो मेरी नज़रों में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 6 पार्ट 3x/2 माइनस 5y/3 प्लस 2 इक्वल टू 0, x/3 प्लस y/2 माइनस 13/6 इक्वल टू 0। यहां से देखिए 6 एलसीएम आएगा, 9x माइनस 10y प्लस 12 0। यहां से 6 एलसीएम आएगा 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0।
देखिए इसमें इसको 2 से इसको 9 से तब जाके इक्वल्स आएंगे जब इस टाइप के सम्स आपके रास्ते में आ जाएं। तो माई सजेशन इज कि आप ऐसे क्वेश्चनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। x माइनस वाई एंड 1, x के नीचे x की टर्म्स मत लिखिए, y के नीचे y की टर्म्स मत लिखिए, और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म्स को मत लिखो, बाकी रिमेनिंग टर्म्स को लिख लो। इंप्लाइज डालिए 130 माइनस 36 माइनस 117 माइनस 24, 27 प्लस 20, x अपॉन 94 y अपॉन 141 1 upon 47, x is 94 by 47 is 2 and y is 141 upon 47 that is 3. तो आंसर x is equal to 2 and y is equal to 3. जब थोड़ा सा भी सम कॉम्प्लिकेटेड होने की कोशिश करें तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना शुरू करें। 90% बच्चे इसी बात से डरते हैं या टीचर से डराते हैं कि पता नहीं पेपर में नाम से आएगा। नाम से कभी भी नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूं। अरे जो आ भी गया तो आप वो बच्चा हैंडल कर लेता, वो बाद की बात होती है। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखोगे, टिप्स पे स्टेप्स लर्न कर लोगे, तो मेरी वर्किंग को लर्न करिए। शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू वन साइड, मिडिल टर्म के साथ माइनस साइन लगाइए। अंडर x में x को निगलेक्ट करो, y में y को निगलेक्ट करो, तो आप क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट दैट आई हैव कवर्ड। I am taking your second questions. सॉल्व करना एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y minus 24। तो मैं फर्स्ट को तो लिखूंगा यही 2x plus 3y minus 11 0। दूसरे को मैं लिखूंगा 2x minus 4y plus 24 0। मैंने यहाँ जान के स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि मैं सीधा फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लूँगा, जिससे मेरा 2x कैंसिल हो जाएगा। 7y minus 35 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट अगर जब मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो 15 minus 11 0, 2x plus 4 0, x is equal to -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, आपने फाइंड m निकालना है जिसमें y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू -2 प्लस 3।
2 is equal to minus 2m. This implies m is equal to minus 1. Now third questions, you have 3 parts. टोटल 6 पार्ट्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. Form the pair of linear equation for the following problems and find the solutions. मैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता हूँ, मैं इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ. इज इट क्लियर? अगर जो आप इस तरीके से सम्स को हैंडल करेंगे तो आपका मैथ कभी भी अच्छा नहीं होगा. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. One number is 3 times the other. Find them. Third question, first part. Let the two numbers be x comma y, x greater than y. X minus y is equal to 26 according to the statement. One number x is 3 times of y. From first using second. देखिए इसमें आप सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2y is equal to 26, y is equal to 13. This implies x is equal to, from second कह रहा हूं मैं. तो x is 39 and y is 13. Larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. Let the two angles be x and y, x greater than y. Angles are supplementary, mean x plus y is 180 degree. Larger of the angles means x is the larger. Exceed the smaller angles by 18. By 18 mean this. तो यहां से भी आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ले सकते हैं, बिकॉज इन्होंने स्टेटमेंट इसी तरीके से ली है. एक्स फ्रॉम फर्स्ट y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 टू y इज इक्वल टू 162. y is equal to 81. This is one answer. And x is equal to 99 from second. The two numbers are 99 and 81. इस क्वेश्चन में भी यही आंसर देंगे. टू नंबर्स आर 13 and 39. Okay, let me take your third questions. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls, and she buys 3 bats. Find the cost of each. Let the cost
of bat and ball is rupees x and y. बैट का मैंने रुपीज x ले लिया और बॉल का y, तो इट मीन 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800. 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. देखिए दोनों के कोफिशिएंट जब अलग अलग होते हैं तो सब्स्टिट्यूशंस ये सब मेरी नज़रों में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस में यही आइडिया ठीक रहता है कि मुझे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेना चाहिए. x माइनस वाई एंड 1 अंडर x में 65 माइनस 13,800, y में 7365 माइनस 005 42 और 3 5 45 एंड 10 प्लस 19 माइनस वाई 0 35 माइनस 18. तो माइनस करते हैं. दिस इंप्लाइज x अपॉन 8500 y अपॉन 0 5 8 and this is 17. So x will be 8500 upon 17, that is 500. Y will be 850 upon 17, that is equal to rupees 50. So cost of bat is rupees 500 and cost of balls is rupees 50. मैंने कहा था कि जब थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड समझ आ जाए तो यू शुड गो विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, तभी आप ये सारे एक्स्ट्रा सम्स ट्राई कर पाएंगे. अदरवाइज आपके लिए सम करने कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है. The taxi charges in a city consists of a
fix charges together with the charges for distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charges paid is 105 and for a journey is rupees 15 kilometers. And charges paid this. Find the fixed charges and the charges per kilometer. आप कह सकते हैं लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज रुपीज वाई. लेट द फिक्स्ड चार्जेस is rupees x and charges per kilometer is rupees y. For a journey of 10 kilometers, charges paid is 105. It means x plus 10y is equal to 105. And she paid 155, and for a journey of 15 kilometers, what are the fixed charges? How much a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? इसमें हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो -5y इज इक्वल टू -50, तो y is equal to rupees 10, and from first x plus 100 is equal to 105. This implies x is equal to rupees 5. Therefore, fixed charges is rupees 5 and charges per kilometer is rupees 10. Is it clear? Now for a person to travel a distance of 25 kilometer, for a person to cover a distance 25 kilometer, charges is equal to 5 plus 25 into 10, so 5 plus 250, that is rupees 255, क्योंकि फिक्स चार्जेस 5 रुपीज तो देने ही है. इज इट क्लियर? So this is question number 4. Question number 5. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator, it becomes 5 by 6. What is the fractions? लिखिए let the fraction be x upon y x upon y if 3 is added both numerator and denominator, it becomes 5 by 6, and if 2 is added to both numerator and denominator, it is 9 by 11.
It means cross multiply 6i plus 18 is 5i plus 15. 11x plus 22 is 9y plus 18. तो 6x minus 5y plus 3 is equal to 0. 11x minus 9y plus 4 is equal to 0. मीन्स इसी के नीचे आप दूसरी टर्म्स लिख लें। देखिए मैं तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस लगाना पसंद करूंगा, बिकॉज अगर जो आप सम्स को शॉर्ट में करना चाहते हैं तो अंडर एक्स अंडर वाई अंडर कांस्टेंट टर्म्स, ये वर्टिकल्स बाहर ही होती हैं, थोड़ा ध्यान रखा करो। सिंबल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। -20 प्लस 27, 24 माइनस 33, -54 प्लस 55, x अपॉन 7, y अपॉन 9. So this implies x is equal to 7, y is equal to 9. Therefore, fraction is equal to 7 by 9. बिकॉज मुझे ये सम ज़्यादा कंफर्टेबल से लगते हैं। 11-12 तक भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एक बार टिप्स पे प्रैक्टिस कर लीजिए। इसलिए सबसे पहले मैंने तीनों मेथड इंट्रोड्यूस किए हैं। क्वेश्चंस को देख के आइडिया लगा लीजिए कौन सा मैंने कहाँ सॉल्व करना है। मेथड्स मैंने तीनों इंट्रोड्यूस किए हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशंस एंड 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स एज हिज सन। लेट द प्रेजेंट एज जैकोब is x and his son age is y. Let the Jacob age is x years, his son age is y year. According to the statements, 5 year hence mean x plus 5 is 3 times of y plus 5. This implies x minus 3y minus 10 is equal to 0. 5 year ago जैकोब एज, अगो का मतलब माइनस हो जाता है, 5 का मतलब 5 साल पहले, ये मैंने प्रेजेंट एज लेट किए। जैकोब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन. इट मीन्स x minus 7y plus 30 is equal to 0. अब यहां से फर्स्ट माइनस सेकेंड किया जा सकता है बिकॉज x के कोफिशिएंट इक्वल है, तो 4y minus 40 is equal to 0, y is equal to 10. फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो x is equal to 40. Therefore, Jacob is 40 year and son age is 10 year. What are their present ages? यही इनकी present ages हैं. That is 40 years and 10 years. So this is your exercise
3.3 and complete your examples according this 3/3. I have introduced all the methods in this videos, algebraic methods. आप उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे.